عربی نے مجھے ایک رات کے 5,000 ریال کی آفر کی۔ میں شادی شدہ بھی تھی، پھر بھی میری نیت بدل گئی اور اس رات میں اس کے گھر رک گئی۔ عربی کو بہت کم نظر آتا تھا، لیکن جب میں رات اس کے گھر رکی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس عربی نے مجھے 8 بار۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ سعودی عرب میں رہتی تھی۔ ہم دونوں زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے۔ شوہر فیکٹری میں نوکری کرتا تھا، مگر زیادہ پڑھا لکھا نہ ہونے کی وجہ سے تنخواہ تھوڑی تھی۔ گھر کا گزارا تان کر کرتے اور شکر ادا کر کے جو ملتا کھا پی کر سو جاتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرنے لگے پیسوں کی شدید قلت ہوتی چلی گئی۔ میں نے ارد گرد کچھ عورتوں سے مشورہ کیا تو ایک عورت نے بتایا کہ ایک عربی کے گھر ملازمہ کی ضرورت ہے، کھانا پکانا ہوگا، کیونکہ عربی کے گھر میں اور بھی عورتیں کام کرتی ہیں، صرف برتن دھونے کی ضرورت ہے۔ میرے لیے یہ کام بہت آسان تھا، لیکن عربی کے گھر کام کر کے مجھے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میرے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھتے ہوئے کہنے لگی، گھبراؤ مت، عربی اندھا ہے، وہ بیچارہ تو بس سارا دن ایک صوفے پر بیٹھا رہتا ہے۔ اس کی بیوی کچھ عرصہ ہوا فوت ہو گئی۔ ایک تو اب اس کی عمر بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے، دوسرا اب اس عمر میں کون اس سے شادی کرے گا؟ آگے تمہاری مرضی۔ اگلے روز میں اس کے پاس دوبارہ گئی اور اسے عربی کے گھر چلنے کو کہا۔ وہ عربی تو بہت اچھا انسان تھا، اس نے میری بھی اچھی تنخواہ رکھی تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر کو اس نوکری کے بارے میں بتایا تو بے حد خوش ہوا۔ کہنے لگا، اگر ہم مل کر دونوں محنت کریں گے تو گھر کے خرچے کے علاوہ کچھ پیسے بھی جمع ہو جائیں گے۔ میں بھی دن بھر فارغ ہی ہوتی تھی، اس لیے گھر کے سارے کام صبح ہی نپٹا کر میں اس عربی کے گھر چلی جاتی ہوں۔ اس عربی کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، یہی کوئی 10 سال کی ہوگی۔ گھر کی باقی ملازمائیں تھوڑا بہت اس پر توجہ دیتی تھی، ویسے بھی پرائی اولاد کو کون گلے لگاتا ہے۔ میں نے عربی کے حالات دیکھتے ہوئے اس کے گھر کی ساری ذمہ داری اٹھا لی۔ میں رات 9 بجے تک اس عربی کے گھر پر ہی رہتی تھی۔ میں صبح 10 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک اس عربی کے گھر پر ہی رہتی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ عربی کس قدر نرم دل انسان تھا۔ وہ ملازمین کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتا تھا، مگر گھر کی دیگر ملازمائیں اب مجھ سے کھار کھانے لگی تھی، کیونکہ عربی میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں چونکہ اس گھر میں نہیں تھی، اگر کوئی ذرا بھی کام خراب ہو جاتا تو وہ ملازمائیں فوراً عربی کے کان میں جا کر بات ڈال دیتی، مگر عربی ان کو خاموش کروا دیتا۔ میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ عربی اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن بیوی کا ساتھ چھوٹ جانے کی وجہ سے اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ عربی کے ساتھ ایک مستقل ملازم بھی تھا جو اس کے ساتھ مستقل رہتا تھا۔ عربی کو دفتر لے کر جاتا، واپس لاتا، سب کام اس کے ذمہ تھے۔ عربی بھی کام سے گھر واپس آتا تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے کمرے میں جاتا۔ میں بچی کے ساتھ ہی مصروف ہوتی، اس لیے پہلے دروازے پر دستک دیتا۔ میں فوراً سے ٹھیک ہو کر بیٹھ جاتی، پھر ہی وہ دروازہ کھولتا تھا۔ پھر اپنی بیٹی کو پیار کرتا، مجھ سے بھی پوچھتا تھا کہ بچی نے تنگ تو نہیں کیا، اس نے کھایا پیا تو ہے نا۔ عربی اپنی بیٹی پر جان چھڑکتا۔ عربی پورے دن کی روٹین مجھ سے پوچھتا تھا، میں بھی اس عربی کو سارے دن کی روٹین بتا دیتی۔ ایک رات کو جب میں گھر جانے لگی تو کہنے لگا کہ 1 منٹ رکو۔ پھر اس نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا اور مجھے 3,000 ریال پکڑا دیے۔ یہ دیکھ کر میں حیران سی رہ گئی تھی، حالانکہ اس نے میری تنخواہ بہت اچھی رکھی تھی اور 5,000 ریال کم پیسے نہیں ہوتے۔ میں نے ایک نظر عربی کی طرف دیکھا تھا، میری آنکھوں میں حیرانگی تھی۔ کہنے لگا، یہ رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ نے جو تنخواہ طے کی ہے وہ بھی ہے۔ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرایا، کہنے لگا، اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، یہ رکھ لو۔ میں نے وہ پیسے پکڑ کے اپنے پرس میں رکھ لیے۔ میں پھر جانے لگی۔ جیسے ہی میں دروازے تک پہنچی تو مجھے کہنے لگا، بات سنو۔ میں نے کہا، جی کہیے۔ وہ کہنے لگا، اس بات کا ذکر دوسرے ملازمین سے مت کرنا اور کسی کو نہ بتانا کہ میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں۔ کچھ دیر تو میں اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی تھی، پھر میں نے اسباب میں سر ہلا دیا اور وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ لیکن نہ جانے کیوں اس رات میں بڑی بے چین سی رہی تھی۔ ایک تو عربی کا مجھے 5,000 ریال دینا اور دوسرا اس بات کا دیگر ملازماؤں سے چھپانے کا کہنا، یہ دونوں باتیں ہی میرے ذہن کو الجھانے لگی تھی۔ پھر میں نے کہا کہ شاید عربی سمجھتا ہوگا کہ دوسرے ملازم اپنے کام خوش اسلوبی سے نہیں کرتے، اور میری محنت اور خلوص کو دیکھتے ہوئے عربی نے مجھے 5,000 ریال تنخواہ دی ہوگی۔ لیکن کچھ دن بعد میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب کچھ دن بعد عربی نے پھر 1,000 ریال کے نوٹ نکال کر میری طرف بڑھا دیے۔ جب دوسری بار عربی نے مجھے ریال دیے تھے، اس بار تو میرے دل میں شک و شبہات آنے لگے تھے۔ آخر عربی میرے ساتھ اتنی مہربانی کیوں کر رہا تھا؟ میں نے وہ ریال اس عربی کو واپس پکڑا دیے۔ میں نے کہا، مجھے یہ نہیں چاہیے، آپ کیوں مجھے روز روز اتنے پیسے دے رہے ہیں؟
मैंने फटाफट से अपनी चादर को ठीक किया था। कहने लगा कि आप मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखती हैं, इसलिए मैंने कहा वो मेरी ड्यूटी है और इसके पैसे मैं लेती हूँ, और जिसके अलावा जो काम है मुझे तनख्वाह मिल जाती है। बहरहाल मैंने उस दिन उस शख्स से कोई पैसे नहीं लिए और वापस घर आ गई। लेकिन अगले ही रोज जब मैं उसके घर गई तो मैंने देखा कि वो अरबी आज दफ्तर नहीं गया था, बल्कि घर पर ही था और बेटी के पास से बैठा था। जब मैं आई तो मुझे कहने लगा कि इतनी देर से आई हैं आप, आपको पता है मेरी बेटी को बुखार चढ़ा हुआ है। उसके लहजे में सख्ती भी थी और थोड़ा लहजा सख्त भी था। मैंने घबरा कर जब घड़ी की तरफ देखा, मैं तो पूरे टाइम पर आती हूँ, मैं इसी वक्त आती हूँ। मैंने कहा मैं तो अपने वक्त पर आई हूँ। फिर वो मुझे कहने लगा किस चीज के आपको पैसे दे रहा था, क्या मेरी बेटी का ख्याल ज्यादा रखा करें। देखिए सुबह से इसको बुखार है, इसकी तो माँ भी नहीं है जो इसकी परवाह करे, इसलिए मैंने आपको मुस्तकिल नौकरी पर रखा है ताकि काम के साथ साथ मेरी बेटी की अच्छी से देखभाल हो सके, वरना मुलाजिम तो मुझे और भी बहुत मिल जाएंगे। आपको इसलिए नहीं रखा कि आप 12-12 बजे तक आए और मेरी बेटी बुखार में चलती रहे। मैंने फटाफट से उसे अरबी से लेकर अपने पास बिठाया। थोड़ी देर बाद ड्राइवर डॉक्टर को घर पर लेकर आ गया। मैं समझ गई थी कि अरबी के पास पैसा बहुत है, जो अरबी ने डॉक्टर को घर पर बुला लिया है। डॉक्टर के जाने के बाद मैंने बच्चे को दवा पिलाई और उसके बिस्तर पर लेट गई कि मुझे अरबी ने ताकीद की थी जब तक बच्ची ठीक ना हो आप घर मत जाएं। मैं सारे काम छोड़कर इस बच्ची पर तवज्जो देने लगी। पूरा दिन मैं बच्चे को संभालते घन चक्कर बनी हुई थी। कभी इसे दवा पिलाती, कभी नरम ग़िज़ा बना कर देती, मगर बुखार की वजह से वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, वरना तो मेरी बात मान लेती थी। लेकिन आज तो जैसे तंग ही किए जा रही थी। मैं रात तक बिल्कुल थक चुकी थी। जैसे ही अरबी आया तो मैंने जाने की इजाजत मांगी तो मुझे कहने लगा कि ये बात मुनासिब तो नहीं लग रही, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अगर आप आज की रात मेरी बेटी के साथ रह लें तो ये आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने कहा कि मैं कैसे रह सकती हूँ, मेरे शोहर 9 बजे वापस आ जाता है और मुझे इसे खाना देना होता है। ये सुनकर मैंने देखा कि अरबी के चेहरे पर अजीब से तासुरात रुनुमा हुए थे। कहने लगा आप क्या शादीशुदा है? मैंने कहा हाँ। मेरा जवाब सुनकर उसका चेहरा बुझ सा गया था। फिर एकदम ही उसने बात बदली और कहने लगा कि आप अपने शोहर से कह दें कि एक रात के लिए आपको यही रहने दें, क्योंकि मेरी बच्ची आपसे बहुत मानूस हो चुकी है। रात भर मैं कैसे इसे संभाल सकता हूँ। फिर आप इसकी दवा के बारे में अच्छी तरह से जानती है। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने शोहर से पूछ लेती हूँ। मैंने मोबाइल निकाला और अपने शोहर से कहा तो वो कहने लगे कि ठीक है, तुम आज की रात रुक जाओ, मैं खाने पीने का खुद बंदोबस्त कर लूंगा। रात भर मैं उस बच्ची को संभालती रही और अगले दिन बच्ची काफी हद तक संभल चुकी थी। फिर मैं जब वापस जाने लगी तो अरबी ने मुझे 2000 रियाल पकड़ाना चाहे। मैंने कहा ये आप क्यों दे रहे हैं? वो कहने लगे आपने मेरी बेटी को बड़ी मुश्किल वक्त में संभाला है और इस पर आपका हक बनता है, इसलिए इसको इनकार मत कीजिएगा प्लीज। मैंने कहा कि आप मेरी ममता को पैसों से क्यों तोल रहे हैं? बेशक ये मेरी सगी औलाद नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा इसे अपनी बेटी की तरह ही समझा है, इसलिए आप अपने पैसे अपने पास रखें, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। ये कहकर मैंने अपना पर्स पकड़ा और मैं घर से बाहर आ गई। मेरी शादी को भी 5 साल हो गए थे, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। कई बार डॉक्टर को चेकअप करवाया, मगर किस्मत में औलाद नहीं थी। कोई पीर फकीर के पास जाने का मशवरा देता तो कोई किसी हकीम का बताता। मेरा इन सब चीजों पर इत्मीनान ना था। अल्लाह से दुआ करती कि एक ना एक दिन अल्लाह मेरी गोद जरूर हरी करेगा। इन्हीं दिनों मेरा शौहर सऊदीया के लिए वीजा लगवाने की कोशिश में लगे हुए थे, इसलिए मैंने डॉक्टर के चक्कर काटने से बेहतर समझा कि मैं अल्लाह के घर जाकर दुआ करूंगी, अल्लाह जरूर मेरी मुराद पूरी करेगा। इसके बाद हम सऊदीया आगे। इतने साल से मेरा शौहर काम कर रहा था, लेकिन हालात जूं के तूं ही थे। लेकिन मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि अल्लाह मुझे औलाद दे, इसलिए जब इस बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी मुझे मिली तो मैंने ये नहीं समझा कि मैं मुलाजमत कर रही हूँ या वो बच्ची मेरे लिए एक बोझ है। मैंने अपनी सारी ममता उस पर निशावर कर दी थी और दिल से उसको संभालती थी। अगले रोज जब मैं काम पर आई तो मैंने देखा अरबी परेशान बैठा था। मालूम करने पर पता चला कि उसकी मुलाजमा जो खाना बनाती थी वो काम छोड़कर जा चुकी है। इसी बात को लेकर अरबी नढाल हुआ बैठा था कि अब फौरी घर में किचन संभालने की वो मुलाजमा किधर से लाए। मैं ये सुनकर खामोश हो गई, क्योंकि मैं अरबी के घर के किसी काम की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। अरबी मेरी तरफ इल्तिजाया नजरों से देख रहा था। मैं जानती थी कि वो क्या चाहता है, लेकिन मेरा अपना घर था, शौहर था। मैं अपना घर संभालती, अरबी के सारे काम की जिम्मेदारी लेती। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता चला जा रहा था। खैर मैंने किचन में जाकर फ्रिज से अंडे ब्रेड निकाले और अरबी को और उसकी बेटी को बनाकर दे दिए। अरबी का चेहरा खुशी से देखने के लायक था।
मैंने दिन भर अपना काम किया और शाम को घर वापस आ गई। फिर मैं नहीं जानती कि क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन शाम को ही मुझे अरबी का फोन आया। वो मुझसे कहने लगा कि फौरन से घर पहुंच जाओ, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। मैंने कहा इस वक्त तो रात के 10 बज रहे हैं। वो कहने लगा कि मुझे आपसे बेहद जरूरी काम है, आपका आना बहुत जरूरी है, आप फौरन से मेरे पास आए। मैंने अपने शोहर को बताया तो कहने लगा मैं नौकरी छोड़ दूं। वो अरबी क्या चाहता है? मैं अरबी के घर जाना चाहती थी। मेरे शोहर का रवैया पहले ही कई दिन से बदला हुआ था। बज़ाहिर तो उसने मेरे साथ कोई बात ना की थी, लेकिन शायद अंदर ही अंदर उसके दिल में शक का बीज जन्म ले रहा था। मैंने कहा कि हो सकता है उसकी बेटी की फिर से तबीयत खराब हो गई हो, मगर मेरा शोहर ना माना। मैंने दोबारा से अरबी को फोन किया और उसे साफ बता दिया कि मेरा शोहर मुझे आने की इजाजत नहीं दे रहा। आपको भी जो काम है, आखिर आपके पास चौकीदार भी है, उससे करवा लें। वो कहने लगा चौकीदार आज छुट्टी पर है, वरना मैं खुद चलकर आपके घर आ जाता और आपके शोहर से भी मिल लेता। मैंने कहा देखे मालिक, मैं आपकी नौकरी की वजह से अपना घर खराब नहीं कर सकती। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने शोहर को खाना दिया और हम लोग सोने के लिए लेट गए। लेकिन मेरे दिल में बार बार एक ही सवाल जन्म ले रहा था, ऐसा कौन सा काम था जो अरबी रात के वक्त मुझे बुला रहा था। मैं अरबी पर शक भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे कम नजर आता था और वैसे भी उसने आज तक मुझसे कोई गलत बात भी नहीं की थी। सोने की कोशिश करती तो बार बार उसकी बेटी का चेहरा आंखों के सामने आने लगता कि कहीं इसकी बेटी को कुछ ना हो गया हो। मैं जाना चाहती थी, मगर शोहर के डर की वजह से खामोशी से लेट गई। लेकिन बार बार एक ही बात सताती थी कि अरबी मुझे इस नौकरी से ही ना निकाल दे। अच्छी भली माकूल तनख्वाह मिल रही थी, जिससे अब हमारे घर के हालात बहुत बेहतर हो चुके थे। मुझे इस वक्त अपने शोहर पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसको किसी बात का ख्याल ना था, और वो सुकून से नींद के आगोश में खराटे ले रहा था। सारी रात मेरी तबीयत घबराती रही और इधर से उधर टहलती रही। न जाने किस पहर मेरी आंख लग गई। सुबह शोहर ने उठाया तो मैंने कहा कि वो किचन में जाकर खुद ही नाश्ता कर ले, क्योंकि रात जागने की वजह से मेरी तबीयत बोझिल हो रही थी। 10 बजे के करीब मैं उठी। शोहर काम पर जा चुका था। मैं तैयार हुई और नाश्ता करके अरबी के घर की तरफ चल पड़ी, लेकिन वहां पहुंचते ही मेरे होश उड़ गए। अरबी के घर के बाहर काफी सारे लोग जमा थे। मैंने जल्दी से शोहर को फोन किया और अरबी के घर पर आने का कहा। थोड़ी देर बाद मेरा शोहर वहां पहुंच गया। अरबी के घर के बाहर काफी पुलिस मौजूद थी। मैं घर के अंदर गई तो सब मुलाजिम धाड़ मार मार के रो रहे थे। मालूम करने पर पता चला कि अरबी रात को घर पर अकेला था और उसकी बेटी की तबीयत शदीद खराब थी। वो बार बार मुझसे मिलने का कह रही थी। शायद इसलिए अरबी मुझे बार बार फोन कर रहा था, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। अरबी अपनी बेटी की खातिर खुद ही घर से निकला, जहां वो मुझे बुलाने के लिए मेरे घर आ रहा था। मेरे और अरबी के घर का फासला कोई बहुत ज्यादा ना था, बस दरमियान में एक मेन रोड था। बेचारा अरबी अपनी लाठी के सहारे सड़क क्रॉस करने लगा तो एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे कुचल दिया था। मैं अरबी के बच्चे को गले लगाए जारों की तार हो रही थी। मैंने कुछ दिन अरबी के घर पर ही रहने का फैसला किया था। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि इस बच्ची को छोड़कर कैसे जाऊं। कुछ दिन बाद एक वकील ने आकर बताया कि अरबी ने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा मेरे नाम कर दिया था। उसने मुझे खत भी दिखाया जो कुछ दिन पहले ही अरबी ने उस वकील से लिखवाया था, जिसमें उसने मुझसे दरखास्त की थी मेरी बच्ची को प्लीज तनहा मत छोड़ना। वकील की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू जारी थे। मैं और मेरा शोहर मुस्तकिल तौर पर अरबी के घर पर रहने लगे। अल्लाह ने मुझे औलाद की शक्ल में एक बहुत प्यारी सी बेटी से नवाज दिया था। कुदरत ऐसी अपने रंग दिखाती है जो इंसान अकल से बेहतर होते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।